प्लेसमेंट्स द अल्टीमेट क्लाइमेक्स ऑफ अ कॉलेज लाइफ स्टोरी. सबसे ज्यादा खुशी और सबसे ज्यादा टेंशन वाला फेज. Even if you want to or not, you have to anyhow face it. We normally go through several videos to learn the tips, tricks, and various methods of how to face an interview. But that's only one side of experience. Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. I, Pratyusha, welcome you to all my program, Pratyusha Talks Placements. In this show, you all will get to know the story of experience from another person's point of view, from inviting the company to facing the interviews and getting placed. So our first guest of season 1, episode 1 is none other than Astitwa Deo. Besides having a high popularity through his YouTube channel and college, maybe you will find almost in every clubs of our college. So he has a various, you can say popularity, or you can say a high connectivity with the students or a network. So hello, Bhaiya, welcome to the show. Hi Pratyusha, how are you? I am fine, Bhaiya. So It's good. It's good us, that you are doing this show. I'm happy. Thank you, Bhaiya. Okay, so let me just brief you the program of the program which we have planned. I will be asking you questions and you have to answer it. Maybe you can give your own suggestions, or else you can just tell the practical things. At the end of this Q&A session, we will have a rapid fire round in which I will be asking you 3 questions and you will be having only 15 seconds or less than that to answer those. Okay. So my first question will be, please tell us about your TNP interview. How did it go? Okay, so I was asked to sit for the TNP interviews in June. Why? Because I was interested in being an IC. I gave my IC interview when I was in 3rd year and they liked it. So they asked me if I could, sit for the TNP placements as well, to be a TNP in the interviews. I gave it. The panel was very, smart. They wanted me to be focused on my branch and also wanted me to be good in management. And if they were interested to know if I would push students in the IT department in case the jobs are not there, I was okay with it. But I was not selected initially in my interview. The interview that happened, I was rejected in that interview. However, later on, they gave a second list in which 2 students from my department, that is me and Ritik from CSE, were also selected as TNPs. Okay. So that was my interview experience. Okay, so as you mentioned that you were not selected in the first time, and like after a few days, you just got a call about your selection. So what was the immediate reaction you got listening to this news? Of course, it was very hopeful. I got lucky second time, and I very believe in that very much. कभी कभी ऐसा होता है कि दोबारा किस्मत मौका देती है, and जब भी मौका देती है तो it's very important कि हम उस opportunity को grab करें. So yes, I was very excited to work as a TNP. I had plans, I had some thoughts and vision कि कैसे ये प्लेसमेंट सीजन जाएगा, and I was happy कि I tried to execute it also, and काफी हद तक execute किया उसको. अच्छा, तो अभी जैसे कुछ स्टूडेंट्स हमारे ईयर के भी दे आर प्लानिंग टू अप्लाई फॉर TNP, एंड इफ चांस दे आर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड, so what will be your suggestion to those people? Should they start working towards a different path, or like what will be your suggestions to those students? See, TNP, becoming a TNP is just adding to your personality. ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं होता है एक पर्सन में, बाय जो TNP नहीं है एंड जो TNP है, बट इट एड्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट एड्स अ पर्सनैलिटी. तो अगर इफ यू नॉट सिलेक्टेड एज अ TNP, देन इट्स वेरी मच ओके भाई. मैं भी नहीं हुआ था सिलेक्ट इनिशियली एंड मेरे को मिल गया मौका, दैट इज डिफरेंट. अगर नहीं मिला होता तो कुछ अलग नहीं होता. अगर मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट्स होते, मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटीज होते, तो आई वुड हैव शेयर्ड इट विद माई एग्जिस्टिंग TNPs. मैं ट्राई करता कि जितने से ज्यादा जितने कंपनीज कॉलेज आ सके आए. सो जस्ट एक टैग होना TNP का डजंट मेक एनी डिफरेंस. ऑल द डिफरेंस दैट इज कि उनको थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ता है, उनके लिए थोड़ा सा चीजें टफ होती है. आई एम श्योर कि तुम समझ रही होगी, बिकॉज यू आर ऑल्सो एन IC. सो थोड़ी सी चीजें डिफरेंट होती है, बाकी देयर इज नो सच डिफरेंस. तो अगर नहीं बन रहे हैं, देन इट्स वेरी मच फाइन. Okay, so my next question will be,
What are the Hmm. areas normally youngsters or the college students are focusing right now more, but they are of no use in the placements? Yeah, देखो, placements is a very big gamble. Okay, there are days, some days in which you are lucky, some days in which you are not. So if you're not selected, if you're not qualifying a test, then it's okay, you should move on. That is the basic key of a placement. I think that many messages that I receive these days is, भैया क्या हम कोडिंग करना चालू कर दे, या भैया मैं तो सिविल का हूँ, भैया क्या अपॉर्चुनिटीज है, कितना सीटीसी मिल रहा है भैया. सो ऑफ कोर्स यू शुड नॉट रन आफ्टर मनी. अगर तुम कोर में हो, if you're interested in core branches, then you should not at all run after money, because they pay you less. You are just a BTech. You are not any, you have not studied higher, or you have not done any, you know, PG courses, so you will not get paid compared to them. And ये कोई गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है. सो यू हैव टू रियलाइज. तो पहला एक चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज टू अंडरस्टैंड द रियलिटी कि है क्या, वो कैसे मिलेगी. देन यू विल टॉक टू पीपल. जब तुम अपने सीनियर से बात करोगे या जो इस फील्ड में है उनसे बात करोगे, दे विल गिव यू अ बेटर पिक्चर कि क्या चल क्या रहा है. देन ठीक है यार, if you're interested in coding, then you should do it. If you're interested in management, consulting, finance, sales, you should do it. It's you are तुम लोग बच्चे हो यार, अभी हम सब अभी बच्चे हैं. Okay, we are just kids. We are 21, 22, some 23 maybe. So you should not pressurize yourself. There is no ending. Life is not ending abhi. So you should just focus on what you're interested in doing, what you can do for the next 10 years, and then maybe pursue it. If you don't see yourself coding in the next 10 years, then don't code, please. Just for the sake of a job, don't start coding. That is my only advice for the core brand students. बाकी CSE वालों यार, करो जितना कोडिंग करना है, कौन तुमको रोक रहा है, खूब कोडिंग करो. What do you think to get into such post, maybe IC or TNP or any kind of post, maybe in different clubs, do you think making connection with the seniors will be having a great weightage in such things? For a TNP, TNP for a general student, post. कोई भी पोस्ट के लिए. हाँ, सी कनेक्शंस इंपॉर्टेंट है. हमारा कॉलेज कल्चर ही ऐसा होता है जहां पर इट्स अ इकोसिस्टम, इट्स अ को एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम, जहां पे एक सीनियर और एक जूनियर एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं. एक सीनियर को एक जूनियर की हेल्प पड़ती ही पड़ती है हर स्टेज पे, एंड एक जूनियर को भी एक सीनियर की हेल्प पड़ती ही पड़ती है. सो वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक कॉन्टैक्ट्स. अगर आप आगे से जाके बात नहीं करेंगे किसी से, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सीनियर आपके पास आएगा. सो यस, एज अ जूनियर or as a senior, it's very important to initiate that conversation. Contacts बनाओ यार, सब help करता है. I have taken help from a lot of contacts. I know people from college जिनके साथ I haven't shared even the year, मतलब कि जिस साल में आया वो उससे पहले पास आउट हो गए, फिर भी I know them. How? Just बस पता चलता है कि कोई NIT का है एंड कोई मेरे हल्के से भी काम आ सकता है, तो एक इनिशिएट कर देते हैं कॉन्वर्जेशन कि हेलो भैया, हेलो दीदी, हम ये है, हम वो है. ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्टनेस या इंट्रोवर्टनेस सही होती है. बस इस बात को जानना जरूरी है कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक साथ एग्जिस्ट करना दोनों का, है ना. तो बस कॉन्टैक्ट्स बनाओ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ह्यूज वर्ड ऑफ एडवाइस. Okay. So do you have any strategies, quick strategies for a core brand student? I have many strategies. However, मैं एक ऐसे disclaimer देना चाहता हूँ कि I am not placed in a core company, but still I have strategies. मेरी mistakes जो मैंने की वो मैं बताऊंगा. पहली strategy is to never lose hope. ठीक है, if you are not selected, if you are getting rejected, then just stay calm. अगर तुम अपने subject में strong हो, and if you are a good student, then you will eventually get a good opportunity. Okay, you can maybe go for MTech, maybe go for government jobs, or even start with private companies and rise slowly. But it's very important to have hope. Second thing, in a preparatory basis मैं बोलूँगा कि be strong in your subjects. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर तुम्हारा सब्जेक्ट वीक है एंड यू नॉट इवन गुड इन योर सब्जेक्ट, तो फिर कैसे मिलेगा भाई, जॉब नहीं मिलेगा. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करो, यू नो, पढ़ाई करो, हैव सम गुड स्टडीज, लर्न फ्रॉम अदर्स. देखो कि बाकी लोग क्या पढ़ रहे हैं एंड तुम क्या कर रहे हो. लर्न फ्रॉम योर टीचर्स. अंडरस्टैंड कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी एंड व्हाट इज नॉट. एंड वंस यू आर गुड इन योर सब्जेक्ट, देन ये and you pass the test, then subject strong है तो भाई interview भी अच्छे से हो ही जाएगा. Just be serious, and that is my second word of advice, to be strong in subject and to never do so. ये दो चीज हैं, तो you can go ahead.
दोनों चीज मेरे पास नहीं थी, मेरा सब्जेक्ट भी वीक था एंड मैं बहुत जल्दी होप लूज कर दिया। एक इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ एंड आई वाज लाइक कि ओके बस अब मेरे से सिविल नहीं होनी है, बाय बाय सिविल। तो वो चीज मत करो, जस्ट वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज, आएंगी अपॉर्चुनिटीज, बहुत है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है। अदर ब्रांचेस के लिए भी सेम सेम एडवाइस। Okay, so there are still some students who have not yet started the preparation for their upcoming placements or interviews. So if you have to motivate them with your words or something like that, then what would be that? तो फर्स्टली अगर आप सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर या फिर थर्ड ईयर में हैं, जस्ट चिल, थोड़ा सा रिलैक्स करो, ये चीज तुम्हारे लिए नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ। जस्ट अगर तुम फर्स्ट टाइम अभी कॉलेज ज्वाइन किए हो एंड यू आर थिंकिंग कि ओके अभी से प्लेसमेंट का चालू कर देता हूँ, डोंट डू दैट, जस्ट यू नो try to develop a personality. जो फोर्थ ईयर वाले हैं, of course they have started, or if they haven't started they should do now, क्योंकि this is the right time to do. तुम्हें नहीं पता है कि कोई अपॉर्चुनिटी कब आ रही है, you cannot just sit and think कि ओके जब आएगी तब कर लिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोएक्टिव होना, बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छा गाइडेंस लेना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आंखों पे पट्टी बांध के बस चले जा रहे हैं, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट द हार्ड वर्क, इट्स ऑल्सो अबाउट द स्मार्ट वर्क। तो वो अच्छे से करो, बहुत लोग करते हैं, उनसे सीखो कि उन्होंने क्या किया था, उनसे कंपेयर करो कि तुम क्या कर रहे हो, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे कि ठीक है दिस इज माय पाथ, ऐसे मेरे को जाना है, ऐसे प्रिपरेशन करनी है। और बहुत कंटेंट है ऑनलाइन, यूट्यूब पे, गूगल पे, एंड नंबर है यार हम सब लोगों का, जस्ट हम लोगों से एक मैसेज कर लो अपने किसी भी फ्रेंड को जिसको तुम पसंद करते हो, जस्ट टॉक टू देम एंड दे विल टेल यू कि क्या राइट है एंड क्या रॉन्ग है। इट्स ऑल अबाउट दैट कॉन्वर्जेशन, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार प्रत्युषा। Okay. हेलो। So any suggestions you want to share with the upcoming batch of TNP, like the next batch, our batch? With the upcoming batch of TNPs, okay, so started, अभी तुम लोग के सिलेक्शन नहीं हुए हैं अनफॉर्चुनेटली, बट यू विल गेट योर पोस्ट वेरी सून, आई गेस जून एंड और जुलाई। बट इफ यू आर इन करंट IC then you may get selected as a TNP, and if you even just aspire to be a TNP you should start working, you should start building contacts। कुछ सीक्रेट बातें हैं जो कि मैं ऐसे वीडियो चैट पे तुमको नहीं बता सकता, वो आई विल टेल यू इन कॉल या फिर इन मैसेजेस, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज नॉट फॉर पब्लिक, है ना। बट यस, स्टार्ट बिल्डिंग कॉन्टैक्ट्स, स्टार्ट टॉकिंग टू HRs, start telling people that you have a college that is a NIT that is interested in placements and अच्छे बच्चे हैं हमारे, तो अगर आप हमारे यहाँ से प्लेस करेंगे तो फिर you will get better। Also एक important word of advice, तुम्हारे ex TNPs हैं, stay in touch with them, they will tell you a lot। ऑल्सो रिस्पेक्ट द CCD, बहुत इंपॉर्टेंट है द CCD की रिस्पेक्ट करना। एंड एक एडवाइस मेरा जो स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि जिनके अंडर TNPs काम, जिनके लिए TNPs काम कर रहे हैं, जनरल स्टूडेंट, या रिस्पेक्ट योर TNPs, है ना। वो लोग गधों की तरह रात भर तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं, तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एंड इफ यू नॉट रिस्पेक्टिंग देम, इफ यू आर ट्रीटिंग देम लाइक एनिमल्स, तो फिर वो लोग छोड़ देंगे ना काम, तो फिर दिक्कत हो जाएगी सबके लिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट म्यूचुअल रिस्पेक्ट। Also the TNPs should respect the students, they should not act like कि हम ही भगवान हैं एंड हम ही सब कुछ है ना प्रत्युषा, राइट? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बिहेव करना है, ठीक है। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए दोनों के बीच में, एंड देन यू कैन जस्ट बी, जितना इजी रहेगा जॉब, जितने एफर्टलेस रहेगा उतना अच्छा है। यही मेरा एडवाइस है TNPs के लिए। Before we move on to a rapid fire round, anything you want to share from your side? यस, एक ही एडवाइस है मेरे लिए प्लेसमेंट सीजन पे पूरे, जो कि मैंने दिया कि डोंट लूज होप, ठीक है। दीज आर वेरी टफ टाइम्स यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस ऑनलाइन थिंग इज वेरी टफ, एंड इसके अपने बेनिफिट्स भी है। बहुत सारी कंपनीज जो जनरली नॉर्थ ईस्ट नहीं आती हैं, दे आर हायरिंग दिस ईयर, क्योंकि सब ऑनलाइन हो रहा है, दैट इज अ बेनिफिट। एक बहुत मेजर ड्रॉबैक ये है टू द कोर ब्रांचेस, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल वाले तो कोडिंग करते हैं थोड़ी सी, तो दे हैव एटलीस्ट दे हैव अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये बात तुम जितना जल्दी अंडरस्टैंड कर लो उतना बेटर है। एक सेकेंड वर्ड ऑफ एडवाइस मैं बोलूंगा कि खुद से कुछ एफर्ट्स डालो, ठीक है। एक लिंक्डइन प्रोफाइल अपना बनाओ, स्ट्रॉन्ग करो उस प्रोफाइल को, टॉक टू पीपल जो कि है इस फील्ड में, HRs को ढूंढो खुद से, है ना। खुद से एफर्ट्स डालो यार, क्यों तो कोई यहाँ पे कोई तुमको स्पून फीड नहीं कर रहा है। 4 years ऑफ माई कॉलेज, द वन थिंग दैट आई लर्न मोस्ट कि कॉलेज में कोई तुमको स्पून फीड नहीं करेगा। एंड सबसे अच्छी बात यही थी एक हमारे कम्युनिटी की एज अ कॉलेज, कि यहाँ पे कोई हमको आके खिला नहीं रहा है,
कि हम पैसे दे दिए किसी को एंड ओके वो हमको कंपनी लाके दे रहा है, वो चीज यहाँ नहीं होनी है। तो खुद से एफर्ट्स डालो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बस अपने आप अपना सब्जेक्ट स्ट्रांग करो, अपना कॉन्फिडेंस हाई रखो, क्योंकि तुम जब तुम पढ़ोगे ना अच्छे से, जब तुम चीजें करोगे तो यू विल दैट, उसी सेंस में तुम कॉन्फिडेंस गेन करोगे कि हाँ हमको आता है, हाँ हम कर सकते हैं। एंड अपना माइंड ओपन रखो, यू हैव मेनी अपॉर्चुनिटीज, यू हैव अपॉर्चुनिटीज इन कोडिंग, इन आईटी सेक्टर, इन core branches, in finance, in consulting, in marketing and sales, in operations। तो प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज आएंगी तुम्हारे पूरे कॉलेज के प्लेसमेंट टाइम पे। अभी तक प्लेसमेंट चल रहे हैं, अभी क्या है, आज मई है ना, इट्स ऑलमोस्ट द एंड ऑफ मई, बट अभी कल 2 कंपनीज आ रही हैं हर सेक्टर के लिए, not just IT or not just marketing, even we have interviews scheduled for the core branches। तो अपॉर्चुनिटीज एंड ऑफ द ईयर एग्जाम्स के बाद भी रहेंगी। तुम्हारे TNPs ये लाइफ टाइम के तुम्हारे TNPs है ना, ये जो एक बार जो तुम्हारे TNP बन गए ये लाइफ टाइम के लिए तुम्हारे TNPs है, तुम्हारा जॉब लगवाएंगे ही लगवाएंगे, ठीक है। तो उसमें कोई इशू नहीं है, जॉब लग जाएगा, हमारा कम्युनिटी इतना स्ट्रॉन्ग है। द ओनली थिंग इज कि वो जॉब तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से कितना ऊपर या कितने नीचे है, एंड वो तुम खुद डिसाइड करते हो, है ना। तुमने खुद अगर अपने एक्सपेक्टेशंस एकदम चांद वाले रखे हैं, तो भाई अगर नहीं पहुंचेगा चांद पे तो तुमको थोड़ा सा तो डिसअपॉइंटमेंट होगा ही होगा। तो अपने एक्सपेक्टेशंस, अपने पतंग अपने हाथ में है, जितना ऊपर जितना नीचे करना है करो। just stay calm and you will eventually get a good job if you want that। and if you are in MTech, if you want to go for MTech or government jobs, then भाई अभी ये वीडियो मत देखो एंड जाके पढ़ाई करो, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी। मैंने देखा है अपने दोस्तों को जो कि प्रिपेयर कर रहे थे गेट के लिए और इवन कैट के लिए, मैंने तो अच्छे से नहीं किया कुछ भी, दे वर स्टडिंग अ लॉट, बहुत पढ़ रहे थे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, डोंट फील सैड if you're not getting placed or if you're not getting good opportunities college wise, there are many self created opportunities, just stick to that। Okay, thanks for all your suggestions. So let's move to a rapid fire round. I will be asking। क्या है ये रैपिड फायर राउंड, मेरे को डर लग रहा है बहुत। नहीं नहीं, मतलब बहुत आसान सवाल है और आपको लेकिन कॉफी विद प्रत्युषा। नहीं, आपको लेकिन सच्चाई से आंसर करनी पड़ेगी। Okay, so first question is, do you have any crush on any HR? और any HR? मतलब आप तो बहुत लोगों से बात किए होंगे। यार देखो, obvious there is, you know, beauty lies in the eyes of the beholder। हाँ, लोग सुंदर होते हैं एंड उन ब्यूटी को अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। बट ऐसी कोई हमारी वीडियो चैट या फिर इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ कि मेरे को किसी के ऊपर क्रैश आ जाए। बट हाँ, दे वर ब्यूटीफुल एचआर्स। इस ज्यादा नहीं बोलना चाहिए मेरे को, क्या बोल रहा है यार, फंसाएगी यार। Okay, so next question is, what would you do if you have an information related to placements and you know that your ex may have a great use of it? I will not share। पहली बात, as a TNP, don't share information with anyone, ठीक है। प्लेसमेंट की इन्फॉर्मेशन किसी को साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। और यार अगर एक्स हो तो क्यों दे रहा है इन लोग को इन्फॉर्मेशन, कोविड है ये सब, काटो इन सब, सांप है सब, सपोले हैं सपोले। कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करना है, हाँ मूव ऑन, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहिए। Okay, my last question at the end of this program is, have you ever faced a situation where you called a wrong HR and you cannot put off the call, right, like and you have to anyhow talk to him, so what will you do in this situation? So I'll tell you कि ये जो प्लेसमेंट का पूरा बिजनेस है ना, दैट इज वेरी, बहुत फैला हुआ बिजनेस है इन लोगों का। ये एचआर एक कंपनी से दूसरी कंपनी कब से जाते हैं किसी को पता नहीं चलता है। सो वी गॉट दिस लिस्ट जब व्हेन आई वाज इनिशियली सेटेड एज अ TNP। तो एक हमारे सीनियर्स ने एक लिस्ट शेयर की थी जिसमें करीब 20,000 कंपनियों के इन्फॉर्मेशन थे एंड हर कंपनी के एचआर का नाम एंड उनका नंबर था। तो ओके, वी स्टार्टेड डूइंग दैट, ओके वी स्टार्ट कोल्ड कॉलिंग करते हैं। एंड यार एक एक्स ग्रुप के एचआर को कॉल कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं और फिर वो कह रहे हैं ठीक है मेल कर दो वाई ग्रुप पे। तो यार हम सोच रहे हैं कि यार ये तो इस कंपनी का एचआर था एंड ये इस कंपनी को क्यों मेल करना चाह रहा है। ऐसा जब 2-3 बार हुआ ना, देन वी अंडरस्टूड कि लिस्ट बहुत पुरानी है एंड मेनी टाइम्स ये एचआर चेंज हो जाते हैं। तो यस, ये ऐसे इंस्टेंसेस आएंगे जहाँ पे तुमको पता ही नहीं कि तुम कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहे हो, अगर तुमने कॉलिंग कर दिया ऐसे ही। तो
ठीक है, इससे कुछ ओवरकम नहीं कर सकता. दिस आर जस्ट बैड इंस्टेंसेस और फनी इंसिडेंसेस. बताओ अपने अदर कोऑर्डिनेटर्स को, शेयर करो उनका एक्सपीरियंस. टफ लाइफ है, पता नहीं कि एक साल कैसा हो तुम लोगों के लिए. ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन भी जा सकता है, यू नेवर नो. तो मस्ती होगा खूब, है ना. हाँ, ये तो है. तो फाइनली हम अपने प्रोग्राम के एंड में आ चुके हैं. वी हैड अ ग्रेट टाइम विथ यू अस्तुता, एंड आई होप यू विल बी हैविंग द सेम. एक बात कहनी है मुझको हाँ कि हाँ. प्रत्युषा पटनायक जी, very good concept and good to see ki, you know, as a TNP I have to get this opportunity to share stuff with जनता, with normal people जो कि TNPs नहीं होंगे, क्योंकि of course जो TNPs होंगे यार उन सबसे तो interaction हो जाएगा, but बहुत सारे लोग होते हैं जो they don't feel free to talk to any random person जो हमसे बात नहीं करेगा. तो हाँ, if they are watching this, then of course they may know things. So good on your part कि you started this thing and this whole Pratyusha Talks placements, good thing. I am happy कि initial episode में मेरे को बुलाया, है ना, and मैंने तेरा lineup देखा है, and they are good people जो कि अब आएंगे आगे, and the finale season 1 अच्छा होना चाहिए यार प्रत्युषा, है ना. It's a good show, fingers crossed. ठीक है, I hope कि the thing that you want to spread कि ताकि most people know about कि ये क्या process है placement का and how the whole placement things work, बहुत important है for everyone to know, and तभी they will cope up. ठीक है, अच्छा है from your part you are bringing this to people, तुम्हारे subscribers को, and whatever people can see this, it's good. Just have fun. ठीक है, and keep up this show. ठीक है Thank प्रत्युषा जी. you. Thank you. हाँ, it was good talking to you. Okay. So, all my viewers, this is episode 1. Please keep loving me, sharing my channel. We will be coming up with more guests in our next episodes. Till then, stay tuned. Bye bye.